to my channel. Today I'm going to give a tour of my entire hostel, like where I'm staying right now, and so that you can also see like the today I'll also be able to show you the rooms because most of the senior they have left the college, and so let's go inside. This is the hostel. So here you can see a big camera over here, and most of the time in the evening time you will see a lot of scooties been parked over here, and this is the place, and that is the park where you can have and hang out sometime. So the name of the hostel is Kalpana Chawla Bhavan, hostel number 7. And if you are an MTech student or PG or PhD, this will be your hostel. So here the scooties are being parked. I don't know why the cycles are there, and this is the place where cycles are placed, but they don't place it very nicely. Every day I have to suffer a lot to place the cycle nicely. So you can see how badly they have, let's not talk about it. Now let's go inside. So this is the place. She will help you to find a room. Hi बोल दो. बोलो ना hi. हाँ बेइज्जती मत करो. And this is Geeta ma'am. हम उनको माँ बोलते हैं. And she is one of our guard ma'am. Say hi. And every time you are in the hostel, you have to enter there and you have to register. These are the register. There are various like registration, like if you have any carpenter issue, anti-ragging duty, and everything, electricity problem, a lot of. And every night you have to make this attendance. So this is the lobby where you can sit and wait for your friends during classes. And so this is one washroom. You can use it if it's emergency, and there is a water cooler there. Now let's go inside. So that is the place. Be nice to the guard ma'ams. They are really very nice and they understand a lot. And with me, they are actually very good. And because I'm a person, I love to talk with people. And maybe that is the reason. So earlier in this places where you can see this and there used to be washing machine, but now they are allocated to the blocks. So there is no washing machine functioning right now because girls, they just steal the knobs. Oh, disgusting. But now it's not working, but it's okay, you can wash your clothes by yourself, but I don't know if it's working. Now let me take you to the mess hall. Okay, so let's go towards the mess. Okay, the food of this hostel is really good, and every day when you come here you have to make an entry. There are two ma'am will be sitting here, they'll be guiding you here, and this is the dining hall. You'll have a lot of amazing food here, and the food are placed here, and as you can see, the roti making process is going on. We get 4 time food here, that is breakfast, dinner, lunch and snacks. Also the food menu keep on changing. The timing morning we get it at around 8 o'clock, and then we get it at lunch at around 12:30 sometime, and then dinner at 8, and also we get snacks at 5 p.m. There is complete, this is you can say a mega kitchen, and here a sitting of around 200 to 300 people can have their lunch and dinner as well. So this is the upstairs from where you can reach to the hall where festivals are being celebrated, like Ganesh Chaturthi or DJ nights and many more. So there it is. So this is a hall. Here Ganesh Chaturthi and various other festivals are being celebrated here. It's fun, actually a lot of fun. Festivals are being celebrated, and this is how the hostel look like. It's a huge hostel, okay, huge hostel. There are various blocks. The room numbers are different, and blocks such as like you can say D block, C block and many more, and also the room number are different. So now I'll be taking you to every block, and also try to show you the rooms. So now let's go. And for the PhD student, they get the front rooms, okay, and they are single, okay. And for PG student, they will be two room, like one room, two people, like that. And also for BTech student, they also got the big room, one room, 3 people. So like that it's happened, and now let's go.
So this is generally the wash area where you can have your, you can wash your hand after food and before food. So make sure when you use it you close all the tabs, and the water should not be wasted. Now let me take you to the another part of the hostel. So this is like a yard where you can sit, and sometime in winters we sit here and eat food. So now I'm taking you to the E block where old hostels are being there. So last time B Tech students are allotted, and also first year PG students are allotted these rooms. So this is like a little you can say old fashioned rooms, but it's fun. See what girls used to ride over here. So there is a big basketball court over there. I'll take you there and I'll show you. This is an old room, but now are being renovated. So this year I don't think these rooms are being allotted, because these rooms will be this is the place where currently BTech first year students are staying, but this place is now being it will be going to the construction area, so like renovation. So now they are shifted to another place, like in the third floor. Right now I come to know about that. And also now I am in this block where this is the E block, the old block you can say. So here, and this year the BTech student will be staying in this block. In this room the thing is that there are common washroom that you have to use here, and then almost all of the rooms are empty now because they have to shift to another room. Let me show you one room where my juniors are staying, and tomorrow they'll be leaving. So this is their room. Let me show you. This is their room. They have one small cooler. अभी इसको ले जाना है ना तुम लोग को, कूलर को. You will get 2 beds, and this is 2-seater. You will get 2 table. Now they are cooking. क्या बना रहे हो? मैगी. अभी हम लोग रात को बैठ के खाएंगे मतलब. यहाँ पे है पायल जो अपना बैग से कर रही है. इधर ऐसे 2 कबर्ड्स मिल जाएगा. यहाँ पे 4 लोग रखते हैं ना बीटेक वालों को. यहाँ पे 4 रखते हैं ना, 3. अच्छा, बीटेक के बच्चों को यहाँ पे 3 रखते हैं. इधर साइड भी आपको एक कबर्ड मिल जाएगा, और यहाँ पे एक ऐसा स्पेस मिल जाएगा. तो यही है यहाँ का रूम. चलो यहाँ पे वॉशरूम दिखा देती हूँ. So let me show you the washroom over this places are. So this is the common bathroom. You can see these are generally clean because there are people who come here to clean most of the time. And these are the toilets, and these are big washroom. Oh, in this here there is geyser as well, and like this is functionable. Okay, this what it is called, shower. You to the another spot of this hostel. So let me take you back. The last video which I have recorded was a few months back, and now I'm recording it after so many days. So let me take you to this side, right? So from this way you'll have this is a place. This is the E block. You can see there is a basketball court over here, and there are also same blocks, and the rooms are all similar. Those rooms are 3-seater, and single-seater rooms are also available, but mostly majority of the rooms are triple-seater over here. Okay, and that is a gate which is always closed. You cannot go from that. And let me take you to another place. So as you can see, these are all blocks. One papaya plant is also over there. There is a stage in this place where I have not seen any kind of function or event that have been conducted over here. Earlier my senior used to tell there used to be some sort of programs and all used to happen in this place. So that are you can see that is raw papaya plant. Now let's go from here. Certain rules in this hostel, okay. So rules such as like you have to come in the hostel before 10, and if you're in the first year then the rules and regulation are much more stricter than other student or first, second year or third year. So generally what happen, मैं अभी बताती हूँ आप लोग को. यहाँ पे सारा जो है, यहाँ पे देखो कैमराज लगे हुए हैं पूरे हॉस्टल में. सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है. सेकेंड थिंग इज़ आपको गार्ड वहाँ मिल जाएंगे. थंब इम्प्रेशन लगाने पड़ते हैं रोज़ रात को. फर्स्ट ईयर के बच्चों को ज़्यादा रहता है. अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हो तो थंब इम्प्रेशन रेगुलर होता है. एक रजिस्टर
रजिस्टर होता है, रोज़ आपको एंट्री करनी होती है वहाँ पे। दूसरा होता है यहाँ का जो खाने का सिस्टम है, मैंने पहले ही अपनी वीडियोज़ में बता दिया था कि मेन्यू होता है, मेस कमेटी स्टूडेंट्स ही होते हैं जो ये सारे कमिटीज़ वगैरह देखते हैं। 2 डेज़ ऑफ मिलता है आपको। सबसे अच्छी बात मुझे यही लगा इस कॉलेज का, तो 2 डेज़ वीक ऑफ मिलता है। और यहाँ पे मतलब फेस्टिवल्स वगैरह सारा सेलिब्रेट होता है। मैंने हॉस्टल पूरा खाली है जिसकी वजह से आप यहाँ पे बहुत कम लोग देखोगे, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल ऐसे रोम करते हुए दिख जाएंगे आपको। देयर आर सो मेनी स्पेस ओवर हियर। सो अभी फर्स्ट ईयर के बच्चे को यहाँ देंगे, तो बीटेक का ऐसा रहता है, ऑल्टरनेट वाइज रहता है। हॉस्टल नंबर 12 में आधे बच्चों को रखते हैं और आधे बच्चों को मतलब फर्स्ट, जैसे अगर इस साल फर्स्ट ईयर को बीटेक को यहाँ रखा, देन नेक्स्ट ईयर बीटेक वालों को उसमें रखेंगे। सो ऐसा होता रहता है यहाँ पे जितना मुझे पता है। एंड फॉर पीजी स्टूडेंट ऑफ बाकी सारे कोर्सेज के बच्चे को यही हॉस्टल मिलता है, पीएचडी, अदर पीजी कोर्सेज और सब कुछ, है ना। अगर आप लोग को देखना है हॉस्टल का और जैसे रूम्स वगैरह, मेरे पुराने व्लॉग्स मैं यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, मैं आपको दे दूँगी, वहाँ जाके आप देख सकते हो। दैट्स ऑल। अगर आपको और कुछ जानना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई बी हैप्पी टू शेयर माई एक्सपीरियंस एंड थिंग्स। यहाँ हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी है, आई एम टेलिंग यू, हॉस्टल लाइफ इज़ रियली अमेजिंग। आई हैव एन्जॉयड अ लॉट इन माई हॉस्टल लाइफ बिकॉज यहाँ पे इवेंट्स वगैरह कुछ होते रहते हैं कॉलेज में ही। येस, इफ़ यू आर पीजी स्टूडेंट थोड़ा सा कम होगा कंपैरेटिवली बीटेक स्टूडेंट्स के, बिकॉज दे आर किड्स, आप बड़े हो जाते हो अब थोड़ा, जब आप पीजी में आ जाते हो तो उस कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रहेगा, बट यूल हैव अ लॉट ऑफ फन ओवर हियर, यूल मेक वेरी गुड फ्रेंड्स। एंड एक प्रॉब्लम होता है पानी, यार पानी का थोड़ा सा इशू रहता है कि बार बार बोलना पड़ता है कि पानी ख़त्म हो गया है, तो वो थोड़ा रहता है। तो मेक श्योर कि यू डोंट टेक समर्स के लिए ग्राउंड फ्लोर वाला रूम वेरी नाइस, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गर्मी बहुत पड़ती है, तो वो मुझे नहीं लेना पड़ा आज तक एक भी कूलर, मतलब मैं 2 साल रही यहाँ पे, बिकॉज़ यार आधे टाइम तो वी गो फॉर इंटर्नशिप, फर्स्ट ईयर में चली गई थी, बट आई वॉज स्टेइंग इन द क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम था, तो पहला इंटर्नशिप तो मैंने यही से किया, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन से रहता है। हाँ, लैंड कनेक्शन आपको मिलता है, वाईफाई आपको लेना पड़ता है, वो वहाँ पे एक सेल है हमारे IT सेल में जाके, न्यू टीचिंग ब्लॉक पे, वहाँ पे आपको पूरा करना पड़ता है, वहाँ जाके फॉर्म वगैरह HOD से साइन वगैरह करवा के फ्री वाईफाई आपको मिलेगा, लैंड कनेक्शन। बट कभी कभी प्रॉब्लम देते हैं, सैटरडे संडे पता नहीं गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है लैंड, तो वो एक थोड़ा सा दिक्कत रहता है। बाकी यहाँ पे सारा कुछ बहुत अच्छा है, मुझे तो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। एंड वार्डन चेंज होते रहते हैं, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा सा, जैसे अभी मेस बंद कर दिया, बताओ पेपर चल रहा है, मेस बंद कर दिया, क्या ही बताए। तो हाँ, इफ़ यू आर अ बीटेक स्टूडेंट तो मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन विल बी ऑन योर फेवर, एंड इफ़ यू आर अ पीजी स्टूडेंट यू हैव टू रेज योर वॉइस एंड यू हैव टू लिटिल बिट go and tell them. So you got my point, right? Oh my god, no. यहाँ पे कुछ था, oh my god, यहाँ पे बहुत सांप होते हैं, oh my god, ये तो बोलना ही भूल गई मैं। यहाँ पे इतने सांप है, मतलब ग्राउंड फ्लोर का रूम तो मुश्किल से ही लेना, मैं कह रही हूँ, बस उसके लिए सही है, बट अदर देन दैट यहाँ बहुत सांप निकलते हैं। और यहाँ आपको अपना सारा बेडिंग वगैरह सब आपको खुद लेना है, यहाँ पे सिर्फ बेड मिलता है आपको। और PhD वालों के लिए 1 आवर के टाइप का रूम है वो, 1 आवर के, मतलब जिसमें किचन अटैच वॉशरूम यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, प्लस यू विल गेट क्लीनिंग फैसिलिटीज़, मतलब वो तो चार्जेस, हॉस्टल चार्जेस में रहता है ना, अभी डर लग रहा है। इलेक्ट्रिशियन वगैरह का आपको मिल जाता है, इलेक्ट्रिशियन वगैरह के लिए पूरा प्रॉपर रजिस्टर होता है, मैंने वहाँ पे आगे आपने वीडियोस में देखा ही होगा। मुझे वहाँ से डर ही लग रहा है, थोड़ा बीच में आ जाती हूँ। हाँ, तो इलेक्ट्रिशियन का वो रहता है कि आपको जो भी आपकी दिक्कत होती है तो आप उसमें भरवा सकते हो, फिल करवा सकते हो, आपको दिक्कत होता है तो दिल कम एंड चेक, ठीक है। तो एक वो रहता है, और नेक्स्ट, और यहाँ सिंगल रूम नहीं मिलता है पीजी स्टूडेंट्स को भी। एंड इवन आई विल नॉट सजेस्ट यू टू स्टे इन सिंगल रूम्स, मेक श्योर यू हैव अ रूममेट, है ना। पहले मुझे भी लगता था सिंगल, मैंने सिंगल में निकाला ना, मतलब सेकंड हाफ, क्योंकि मेरी रूममेट चली गई थी, तो MTech वाले सब लोग ही मोस्टली सब चले जाते हैं ना, और मुझे शिफ्ट करने के लिए बोला था, बट आई वाज लाइक नहीं यार, चलो 2000 एक्स्ट्रा पे कर देते, क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैंने इसीलिए पे करके मैं सिंगल रहने लगी। बट इफ़ यू 2 लोग रहते साथ में तो ज़्यादा मज़ा आता है। इफ़ यू आर स्टिल हैविंग दैट माइंड सेट, नहीं मुझे सिंगल ही रहना है, दैट्स अप टू यू, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस दैट डबल वाला ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको लगता है नहीं प्राइवेसी का इशू रहता है, कुछ नहीं होता है, यहाँ बहुत स्पेस है, आपको बहुत प्राइवेसी मिलेगा यहाँ पे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। स्टडीज़ में भी कोई इशू नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू, मुझे जहाँ तक पता है पढ़ने वाले बच्चे आते हैं यहाँ पे, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। NIT में ऐसे मैंने देखा नहीं है कोई अब तक जो मतलब थोड़ा ऐसा है,
मे बी मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि मेरी जो रूममेट थी शी वॉज़ वेरी इनटू स्टडीज़। उसको देख के तो मुझे लगता था कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मतलब बहुत। वो एमटेक में थी एंड शी वॉज़ वेरी नाइस। आप पुराने वीडियोज़ में वो देखा होगा, शी इज़ सो लवली। तो हम लोगों ने बहुत मज़े किए थे साथ में, बहुत बहुत। तो आई मिस हर सम टाइम। सो वही था, तो दैट्स ऑल। अगर आप यही मुझे थोड़ा सा आपको बताना था, बट इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग लेट मी नो। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया यार, धूप आ रही वहाँ बैठ जाती है रुको। बट यू नो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको पहले से पता होने चाहिए हॉस्टल्स के बारे में। ये मेरा ब्लॉग है, यहाँ पे सारा सिंगल रूम है यहाँ पे, लेकिन डबल डबल रखते सिंगल रूम में भी। ये मेरा रूम नहीं है, ये मेरे बगल वाला रूम है, मेरा वो वाला रूम है। यहाँ देखो गार्डन लगा हुआ है, मैंने गार्डनिंग भी की थी यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे लेट अगर आ रहे हो है ना, लेट एंट्री का भी फ़ीस लगता है। 10 बजे के बाद आ रहे हो ना, एक्स्ट्रा आपको फ़ाइन भरना पड़ता है। और अगर रजिस्टर में एंट्री रेगुलर नहीं हुआ, थंब इम्प्रेशन नहीं लगाया, उसमें भी 500 रुपये वो लोग एक्स्ट्रा ले लेंगे। मेस का यहाँ पे अलग से पेमेंट होता है। और जैसे अभी क्या मेस बंद है क्योंकि बीटेक वाले सब चले गए हैं, तो 10 तारीख तक उन्होंने मे का रखा। लेकिन क्या हम पीजी वाले हैं, जो एमटेक एमएससी वाले बच्चे होते हैं ना, उनका क्या है डिसर्टेशन रहता है या फिर उनका रिसर्च पेपर रहता है, तो उसके लिए वो लोग मना कर देते हैं, मतलब वो नहीं चलाते हैं। तो वो एक थोड़ा सा इशू रहता है। बट हम लोग ने तो बहुत बोला था, बट फिर भी कुछ नहीं हो पाया। बट यहाँ पे वाटर कूलर्स आपको मिल जाएंगे, हर फ्लोर में वाटर कूलर है, वॉशिंग एरिया भी है यहाँ पे। बस यही वाई फॉर दोज डेज ना, जब मैस नहीं चल रहा होता है, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ता है ना कि जैसे हम लोग बाहर से कैंटीन ले लेते हैं या फिर यहाँ पे आप कुक कर सकते हो। मोस्टली सब लोग कुक ही करते हैं, खुद का मतलब अलाउ है यहाँ पे, कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है। आप यहाँ पे अपना कूलर रख सकते हो, यहाँ पे अपना जो भी सामान रहता है। यहाँ गैस वैस तो नहीं अलाउ होता है, केटल वगैरह रहता है जो आप यूज़ कर सकते हो। सो यही है बस यहाँ का, कि यहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जैसे मैं जिस कॉलेज से आई हूँ वहाँ तो कोई इलेक्ट्रिक गैजेट कुछ अलाउड नहीं था, कुछ भी नहीं। बट यू गेट अ एडवांटेज इन दिस हॉस्टल कि आपको इलेक्ट्रिक चीज़ें यू कैन यूज़ ओवर हियर। सो यहाँ पे वही है, करंट इतना जाता नहीं है, कभी कभी जाता है, कभी रेयर, एकदम रेयर। हाँ, लेकिन यार लैन कनेक्शन का थोड़ा रहता है क्योंकि अंदर नेटवर्क नहीं मिलता एक तो, और फिर क्या होता है ना बाहर भी मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब यहाँ पे मतलब एयरटेल का तो चलता ही नहीं है मेरे इस ब्लॉक में। इस ब्लॉक में तो बिल्कुल मत घूम लेना तुम लोग, मैं बता रही हूँ। अगर आ रहे हो तो मतलब अलॉट अगर हो गया तो वो अलग बात है। बट इस जगह मेरे को नेट ही नहीं आती यार, तो वाईफाई में पूरा कनेक्शन लेना पड़ता है। बट वाईफाई चलती है, पर सैटरडे संडे थोड़ा वो ऑफ हो जाता है, डिप डिप करने लगता है। तो बस यही है यहाँ का हॉस्टल। तो चलो मैं चलती हूँ, और आई होप यार एक लाइक तो बनता है। देखो एक लाइक तो कर दो, ठीक है तुम लोग, लाइक अपना लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो। और जो लोग NIT भोपाल में एडमिशन लेना चाहते हो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच यार, यहाँ तक आए हो तुम लोग मेरा वीडियो देखने के लिए। लव यू। चलो बाय।